Hi everyone. My name is Neeraj Kumar Tiwari, and I am your trainer. So today's topic, a roadmap of monastic development. Okay. So you can start. I can start the session. First of all, your quick introduction. Start your name and your college name and your education and your which skill are you comfortable? Are you interested? Okay. So please unmute yourself one by one and over to you. Hello, sir. हेलो अजहर, बताओ Hello, अपना sir. Um, अपने बारे में बताओ. yes, I'm speak. या बोलो. Yes, I am Azhar Ali Khan. ओके. I am a completed BTech Computer Science Engineering. I am ओके. AKT University, Dr. APJ Abdul Kalam University, Lucknow, Uttar Pradesh. I ओके. am ओके. skill Java and C and website HTML, CSS, React.js, one stack skill and internship 1 year web development. ओके. You have completed your internship, right? Yes, 1 year. Okay, okay. Which year you have completed your BTech? BTech 2024. 2024. Okay, okay. Ajhar, nice to meet you. But uh, but uh, but 2023 I joined Timinta Magnetic Software company. Okay, okay, okay. Got it, got it. Okay. So, Aman, please unmute yourself. Yeah, good evening, sir. My name is Aman Good Tiwari. evening. First of all, thanks for giving this opportunity. I have relevant skills about modern stack like MongoDB, Express, React, and Node.js, and HTML, CSS, JavaScript. Okay. And I am 2024 pass out MCA graduate, and I have my own YouTube channel called. Okay, That's all okay. about me. Thank you. Okay, thank you. So, next, Ravi Shankar. Hello, am I या audible? ऑडिबल प्लीज बताओ. Hello, हाँ, बताओ बताओ अपने um, बारे में. my यू आर name ऑडिबल. is Ravi Shankar. I am graduated from UAM Jaipur, and I have just completed my BTech in 2024. And talking about my skills, I am good at HTML, CSS, JavaScript, React, and Node.js. Okay. That's all. Thank you. Okay, thank you. So, next candidate is Henry Kashyap. Please unmute yourself. Good evening, sir. Good evening. My name is Henry Kashyap. I have recently graduated from MS Ramaya University of Applied Sciences, specialization in computer science and engineering. I've been graduated in the year 2023. I have worked as an IT support engineer for only 4 months in a private company. My skills are HTML for front end, HTML, and for functions and logic, JavaScript for styling the web page, CSS. And apart from that, I'm interested to learn full stack developing. Yes, sir. ओके ओके. नाइस टू. सो आज के वीडियो में हम लोग That आज के is all क्लासेस में I want to ये say, sir. क्लासेस ये क्लासेस 10 डेज के Thank लिए you, sir. होने वाले. ठीक है. हेलो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Okay, sir. Yes, ओके sir. ओके. ओके ओके, तो प्लीज बताना मुझे. तो Yes, देखो sir. ये. Yes, sir. Yes, sir. Yes. IBM कोर्स का दिखा रहा है, सर. ओके ओके ओके. सो ये आज के Yes, sir. सेशन जो होने वाले हैं हम लोग रोड मैप देखने वाले हैं. आज के सेशन में हम लोग रोड मैप. प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट.
सो देखो, आज के जो सेशन, ये ट्रेनिंग 10 डेज के लिए होने वाली है। 10 डेज के अंदर में हम लोग एक मर्न स्टैक डेवलपमेंट के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने वाले हैं कि एक्चुअल में मर्न स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये रोड मैप होने वाली है। किसी भी, अगर किसी भी एक पार्टिकुलर डोमेन चूज करने के पहले उस डोमेन के स्पेसिफिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो डोमेन स्पेसिफिक है जिस डोमेन में हम एक्चुअल में इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। ठीक है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरा एक्सपीरियंस के, तो मैं ऑलरेडी, मेरा प्रीवियस कंपनी नेम इज कॉग्निजेंट, माय सेकंड कंपनी नेम इज नगारो एंड माय थर्ड कंपनी नेम इज एचसीएल। मैं एमएनसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर चुका हूं और मैं एज ए ट्रेनर, मैं प्रोवाइड करता हूं एज ए कैंपस रिक्वायरमेंट। मैं कैंपस के लिए भी हायरिंग करता हूँ और एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है, आईटी इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के डोमेन आईटी इंडस्ट्रियल में होता है। आईटी इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के डोमेन होता है। ये स्पेसिफिक आप नहीं बोल सकते कि सर एज ए फ्रंट एंड, अगर मुझे फ्रंट एंड की नॉलेज है तो मैं फ्रंट एंड में ही काम करूंगा। सर एज ए बैक एंड, मुझे बैक एंड की नॉलेज है तो मैं बैक एंड में ही काम करूंगा। सर एज ए डेटाबेस का नॉलेज है तो डेटाबेस में ही काम करूंगा। एज ए पाइथन का नॉलेज है तो पाइथन में ही काम करूंगा। एज ए जावा, आप डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, कुछ भी। आईटी इंडस्ट्रियल ये कहता है, इंडस्ट्री ये कहता है कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कल के डेट में अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे आप किसी कंपनी में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी टीसीएस में सिलेक्शन हो जाती है। अगर टीसीएस आपकी बोलती है कि पहले आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, किस डेजिग्नेशन में, तो आप बोलोगे सर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर में था। अगर कल के डेट में आपसे बोलती है कि आप पाइथन पे वर्क कर लोगे, तो ऐसे थोड़ी आप बोलोगे कि नहीं सर मैं तो पाइथन पे वर्क नहीं करूंगा क्योंकि एक्चुअली मैं रिएक्ट जेएस पे काम करता था। समझ में आया आपको? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, तो देखो वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं, इसलिए मैं रोड मैप यहाँ से, आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे अंदर में रोड मैप में देखने वाले हैं कि हम रोड मैप में कौन कौन सी वो पार्टिकुलर स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल होती है जिसे मैं फॉलो करूं कंटिन्यू। देन मैं अच्छा खासा एज ए मन स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एज ए फ्रंट एंड बैक एंड में डिफरेंट टाइप का डोमेन का नॉलेज एक्वायर करूं। मैं जिस भी कंपनी में नेक्स्ट टाइम काम करूं, उस कंपनी के लिए अच्छा खासा ग्रोथ करूं, अच्छा खासा अपना एक स्किल सेट करूं। ठीक है, इसका मेन मोटिव होनी चाहिए। अगर हम बात करें आप लोगों को, अगर इस रोड मैप पे हम जाते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा थोड़ा सा आपको बता दें कि आईटी इंडस्ट्री में कितने टाइप के डोमेन होता है। ठीक है, तो डोमेन के अगर अगर बात करें तो मैं ये डोमेन एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिसमें दो दो टाइप का कैटेगरी होता है। फर्स्ट कैटेगरी होता है एज ए फ्रंट एंड सेकंड कैटेगरी होता है एज ए बैक एंड डेवलपर। अगर मैं थर्ड फोर्थ डोमेन की बात करूं तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस, एआई डोमेन, आईटी सपोर्ट, मशीन लर्निंग, इंटरनेट डोमेन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, चैट प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस। मतलब आई थिंक आप देखोगे कि इतनी सारी डोमेन आईटी सेक्टर में ऑलरेडी वर्क कर रही है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मुझे एक्चुअल में फ्रंट एंड में जाना चाहिए कि एज ए बैक एंड में जाना चाहिए, एज ए पाइथन में जाना चाहिए कि एज ए जावा में जाना चाहिए। तो ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है। तो इससे इससे बचने के लिए हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम लोग सिंपल रोड मैप के ऊपर चलेंगे कि रोड मैप में हम कौन कौन सी वो प्रोग्रामिंग स्किल्स को हम फॉलो कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। समझ में आया अभी तक जितना मैं बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा? Yes, sir. सर मेरा Yes, एक sir. Yes, क्वेश्चन sir. है। हाँ, बताओ बताओ। सर मेरा बोलो एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर मैं अटेंड कर रहा हूँ। सर मुझे सर ने बोला कि आप जावा नहीं करना चाहते तो आप अभी मत करिए इसको अटेंड। अभी अभी मंथ तक की चल रही है और मेरा पाइथन, अभी आपने जस्ट स्टेटमेंट किया कि आप ये मत सोचिए फ्रंट एंड है बैक एंड है, तो क्या मुझे मंथ तक करना चाहिए या मुझे पहले? मेरा एस्पायरिंग तो पाइथन है, मैंने पाइथन पे वर्क किया हुआ है, तो क्या देखो मंथ तक इसकी मेरे को काम आए?
इसकी बेसिक बेसिक सिंपल, बहुत सा सिंपल आंसर है। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट ये कर रही है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मैं आपको मर्न स्टैक डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस सपोज दैट अगर कंपनी के पास डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट हो, डिफरेंट टाइप का क्लाइंट हो, अगर दूसरी क्लाइंट बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे आप अगर जैसे मन स्टेप फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, इस क्लाइंट के पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या आप डिफरेंट टाइप के जैसे जावा, अगर कंपनी आपसे बोलती है कि आप जावा पे एस्टेब्लिश कर सकते हो, तो आप कंपनी की ये थोड़ी बोलोगे कि सर मैं जावा पे वर्क नहीं करूंगा। समझे बात को। देखो कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको जावा बेस मतलब अच्छे खासे नॉलेज होना चाहिए, आपको पाइथन में नॉलेज होना चाहिए, आपको पीएचपी में नॉलेज होना चाहिए, आपको रिएक्ट नेटिव, लेकिन बट अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि कल के डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप बताओ जावा डेवलपर क्या होता है, तो आप मुझे स्पेसिफिक तरीके से समझा सके, राइट। मैं कल के डेट में आपसे पूछूं कि पाइथन क्या करता है, पाइथन एक पाइथन डेवलपर क्या होता है, तो आप स्पेसिफिक तरीके से मुझे समझा सके। कल के डेट में मैं अगर आपसे पूछूं कि पीएचपी का क्या एक्चुअल में वर्क है, क्यों हम लोग यूज करते हैं, शॉपिफाई डेवलपर के क्यों यूज करते हैं, ये सब जितनी भी है, तो आप एक्चुअल में मुझे समझा सके। हाँ सर, रिएक्ट नेटिव को बेसिक हम लोग गेमिंग के लिए यूज करते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या है, पीएचपी के लिए हम बैकएंड की यूज कर सकते हैं, राइट। समझ में आया। यस सर। यस सर, मुझे समझ में आया। यस सर। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो कल से क्लासेस चालू होंगी, वो मन स्टैक की अलग होंगी, जावा की अलग होंगी। हाँ, राइट तो राइट मुझे राइट राइट। किसमें देखो मेरे को वो किसमें तो जानना चाहिए, मतलब मैं। मुझे ये वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखो, इसलिए तो रोड मैप मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं चाहता तो फर्स्ट डे से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता आपका, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। रोड मैप एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहां पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ एक ही रोड मैप में आपको ये नॉलेज हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपका इंटरेस्ट किस में लग रहा है, आप ये देखो पहले। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं इस रोड मैप के ऊपर आपको सब कुछ 1.5 घंटा, आपको 2 घंटा एक क्लासेस देने वाला। 2 घंटे के क्लासेस में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इतना कंफर्म हो जाएगा कि आप अपना डोमेन खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास खुद ही नॉलेज हो जाए। कल के डेट में अगर आपके कोई कलीग, जैसे छोटे ब्रदर, चाहे कोई कॉलेज का स्टूडेंट, कोई आपसे रीच आउट करता है, पूछता है भैया एक बात बताइए कि फुल स्टैक मन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा मुझे भी आइडिया बताइए, तो आप उसको स्पेसिफिक तरीके से समझा सकते हैं। समझाना करियर में बहुत बड़ी एक मेंटरशिप होती है। तो यहाँ से आपको क्लियरेंस मिल जाएगी कि हाँ एक्चुअल में मेरी यहाँ पे सुटेबल हो रही है कि मैं उस पे सुटेबल कर रहा हूँ। तो आपको जिस भी सुटेबल लग रही है वहां आप ट्रेनिंग चालू करो। एज ए मन लग रही है कि सर मैं मन में अच्छा कर सकता हूँ, तो यू कैन डू इट, आप करो, ये कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि नहीं सर मैं जावा में अच्छा कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, जावा में करो। लेकिन यहाँ पे समझने के बाद आपको, यहाँ पे मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट किस में लग रहा है। ठीक है, समझ में आया। बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। हाँ, तो इसलिए देखो मेरी मेरी मेन मोटिव यही रहती है कि हम जिस भी क्लासेस में, जहां भी ट्रेनर एज ए हम ट्रेनिंग यूट्यूब में क्लासेस देते हैं, चाहे मैं अन कॉलेजेस में जाते हैं, चाहे मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा फर्स्ट स्ट्रेटजी यही रहता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिकेट करना बच्चों से। आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं, नहीं हम आपसे बात करेंगे, आप नहीं बात करोगे, एक स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे, तो हम दोनों को क्लासेस लेने से कोई फायदा नहीं। हम क्लासेस देंगे, आप क्लासेस बस सुनोगे, उसके बाद से चले जाएंगे। अभी तक मैंने जितना, जैसे 25 मिनट मैंने बोला, 25 मिनट में आपको समझ में आया ना, मतलब कि हाँ एक्चुअल में सर ने क्या बात किया, सर ने क्या बोला, कुछ तो दिमाग में 70-80% आया होगा। सेशन तो बोर नहीं लग रहा है ना। नो सर, नोट इशू। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ओ, इंटरेक्टिव सेशन है आपका। और रोड मैप भी क्लियर होता जा रहा है कि HTML कैसे होगा, CSS स्टेप हाँ बाय हाँ, स्टेप समझ में आ रही यही है। बेसिक। गिट की जरूरत क्यों है, और हाँ बेसिक, यही 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 मैं बताने वाला हूँ। आप विश्वास करो, बिलीव करो, जब मैं क्लासेस यहाँ पे रोड मैप फॉलो करूंगा सब कुछ, तो 1.5 घंटे में 10 बजे तक हम लोग इतने स्ट्रेटजी से, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग मतलब इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि यकीन करो आप खुद ही बोलोगे कि सर 100%। मैं अगर
आप चाहो किसी और को तो स्ट्रेटजी से समझा सकते हो। तो यही है। तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैं एक क्वेश्चन करूं कि व्हाट डज ए फुल स्टैक डेवलपर डू, हमको फुल स्टैक डेवलपमेंट की क्यों जरूरत पड़े, कोई बता सकता है? Yes, Yes, sir. sir. Full stack developer is needed because full stack developer is a combination of front end and back end development. Front end राइट development is a front side of a website जो हम एंड यूजर को दिखाते हैं, और बैक एंड डेवलपमेंट जो होता है वो एडमिन पैनल होती है जिसपे In the राइट back राइट end राइट side, hello. या कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। Yes. In the back end side, whatever the logic we build for the web pages, everything is written in there only, and we deal with some databases and APIs. एब्सोल्युटली राइट राइट राइट। नेक्स्ट, कोई एनीवन, कोई बोलना चाहता है? Yeah, yes, sir. देखो, जो भी Sir, आपके Sir, पास in the आंसर है प्लीज front कम्युनिकेट end, करो। okay, sir. या Full प्लीज stack कंटिन्यू। developer is a combination of front end and back end. Front end we have a HTML, CSS, and in back end we use JavaScript and Node.js. And CSS is a designing part, and HTML is a blueprint like a structure of any website, and Node.js is a backend part, and where we have client and server, clients and request on server, and राइट राइट where uh, using server we can fetch the data, and all data present our screen, and we can read all of these. sir, in front end, we basically मम्मी design आज भी रूम uh, करना, पापा पापा the user interface या where the राइट राइट users can interact, like the buttons and all. But in the back end, it's mostly the logic part where all the data get stored, like in a storage or in database. And ओके। yes, sir, that's all. सो मैंने आप लोग का आंसर एब्सोल्यूट राइट, मतलब 100% उस आंसर से मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। अगर मैं डिफाइन करूं इस स्ट्रक्चर को, तो मैं डिफाइन कर रहा हूं कि एक फुल स्टैक डेवलपर इज द डेवलपर। ठीक है। एक फुल स्टैक डेवलपर डेवलपर है who is the comfortable working with the both front end and back end of web application। एक फुल स्टैक डेवलपर वही डेवलपर है जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों एप्लीकेशन में वर्क कर सके, दोनों डोमेन में वर्क कर सके, काम कर सके। ओके। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द इंटायर एप्लीकेशन। इनके पास जो रिस्पॉन्सिबल होगा, डेवलपिंग होगा, मेंटेनिंग होगा इंटायर एप्लीकेशन, जितना भी एप्लीकेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन ले लो, किस भी एप्लीकेशन से ले लो, इसको मेंटेनेंस लगता है, एप्लीकेशन को मेंटेनिंग का, डेवलपिंग का, रिस्पॉन्सिबल का, इसका बेसिक हम लोग का हेल्पफुल होगा उसके लिए। अगर फ्रॉम द यूजर इंटरफेस टू द सर्वर साइड, जो फॉर्म होता है वो सर्वर साइड से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। एंड लॉजिक एंड द फुल स्टैक डेवलपमेंट और डिस्क्रिप्शन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक कंपनी एंड प्रोजेक्ट दे आर वर्किंग। ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट, जैसे आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो क्लाइंट साइड प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, तो कौन सी कंटेंट, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हैं आप, बैक एंड में, फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं। तो इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। और भी अगर सिंपल लैंग्वेज की हम बात करें तो ए फुल स्टैक डेवलपर क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में थोड़ी सी और इसको डिफाइन कर लूं कि फुल स्टैक डेवलपर वह होता है, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस को, ठीक है, जो वेब एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस को और बैकएंड सर्वर और डेटाबेस को डेवलपमेंट प्रक्रिया को संभाल सकता है। ठीक है। अगर मैं इसके आगे और भी ऐड करूं कुछ सेंटेंस, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसमें आपको क्वाइट और सर्वर दोनों के पक्ष में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आंसर बेसिक आपको कुछ समझ में, मैंने आपको जितना बताया। yes sir Yes, 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 yes. sir. Yes. yes, sir.
अब समझ में आया ना? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछे कि ये फुल स्टैक डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो आप सिंपल से बता सकते हो कि सर फुल स्टैक डेवलपमेंट इज द डेवलपर हु इज द कंफर्टेबल वर्किंग विद द बोथ द फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ वेब एप्लीकेशन, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, इंटायर एप्लीकेशन के लिए। हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशन, बड़े बड़े जितने भी डेवलपिंग मेंटेनेंस के लिए हम लोग इस पे वर्क करते हैं, एक्चुअल में डिबॉगिंग ये सब प्रोसेस इस पे, इसी के द्वारा हम लोग होता है। अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट की मांग क्यों बढ़ रही है ऐसे कंपनी में? आप सुन रहे होगे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी जगह पे ये चल रही है कि सर एआई, आर्टिफिशियल सर वेब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ चुका है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का मांग नहीं हो रही है एज ए फ्रंट एंड, एज ए बैक एंड, एज ए डेटाबेस। ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इसकी मांग क्यों बढ़ रही है, तो उसकी सिंपल सी, आपको देखो, ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, जैसे हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछते हैं हम लोग कि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझने वाले हैं कि जो स्टूडेंट है उसका कितना माइंड सेट है, मतलब वो क्या सोच रहा है, क्या बोल पा रहा है, क्या नहीं बोल पा रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीज हम लोग देखते हैं इंटरव्यू के पर्पज से भी आप लोग के लिए। तो इसकी सिंपल से हम अगर क्वेश्चन का आंसर बोले कि अगर हम बोल सकते हैं कि आज आज के समय बहुत सारी कंपनी डेवलपर के साथ डेवलपर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, जो जो मतलब पूरे एक तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर बाई चांस, जैसे अमन, मैं अमन का बात करूं कि मैं अमन का एक रिस्पॉन्सिबल दे दिया, अमन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि अमन, एक मेरे पास क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट बनाना, फॉर एग्जांपल मुझे एक कुछ भी एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, उसमें फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस जो भी होगा ओनली फॉर अमन ही देखेगा। तो अमन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ गया कि उसको फ्रंट एंड, उसको बैक एंड, उसको डेटाबेस, इसको तीनों एक्चुअल में डोमेन पे वर्क करना है। जब अमन एक्चुअल में डोमेन में वर्क करेगा तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई कि ऑलरेडी ये तीनों काम कर रहा है, तो ये नॉलेजेबल हो गया, ऑलरेडी इसके पास सारे नॉलेज है कि फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है, बैक एंड कैसे वर्क करता है, डेटाबेस को कैसे ऐड करता है, ये सारी नॉलेज हो गई। तो यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फुल स्टैक डेवलपमेंट के, कि आप एक इजी तरीके से वेबसाइट को, एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर यस सर। ओके। सो अब देखो, मैं आपको रोड मैप पे चलते हैं हम लोग, कि रोड मैप हम लोग क्या क्या, रोड मैप से हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं। तो हम लोग रोड मैप को ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले there are two type of full stack development, there are two type of, first front end and second back end। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज द फुल फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट इज द बैक एंड डेवलपर? यस सर। Yes, sir. प्लीज Yes, sir. प्लीज Work बताओ। the work of a front Sir. end developer is basically he will work on the front end like a UI Okay, who got it. can comfortable the user Yeah, got it. interface. Your answer is good. Any other? Front end in front end we can use your technologies like React.js, Angular, Vue.js, or we can simply go for HTML, CSS, and JavaScript also. Got it. Front-end developer is responsible to make user interface by using multiple options for that, like React or Angular or something frameworks available in many. Sir, for Right. front-end developer, mainly it is used HTML, CSS, JavaScript as the programming languages because it's a front end of a website. As I already mentioned in the previous part, that it is a outer look where we can interact when the end user can interact with the website. So there are certain React part also where they will going to click on buttons. There will be a a menu should be there. Yeah. What you say, a burger menu should be there, or the kind of stuff will be
a part of front end. And for backend, databases, RESTful APIs to work on the internet, how to connect internet into website, how to Right, right. use a JavaScript. A mind of a website is a backend basically. A look is Yeah, a yeah, yeah. front end, and a mind is a This basically brain of web development. This is called brain of web development. It is called backend developer, right? Any other? Sir, in backend, uh, mostly the datas are stored, that is in a storage like SQL. And if user wants to retrieve data to the field in the front end part, then they have to uh, connect the server to the backend Right, part to collect the data, and right, right. then can get the result or output. Hello, Yeah, yeah. hello, sir. Please continue. Fronted is a skill HTML, CSS, JavaScript. Design a website fronted, and backend is PHP developer, database server, intermediate. Yeah, right, right. Any other? Yes, sir. So, sir, using front end, human can interact to computers, and we can create front end with multiple technologies like HTML, Right, CSS, right. and React for single page application. And we can also use Angular JS and AngularJS. Bootstrap for some short code. And this is the basically designing and interaction part of any website. Like you can, I, I can take an example like Amazon, Flipkart, Swiggy. This is the all at website we can visible all things like you can say the front end part, and in the back end we can use JavaScript. This is the basically logical part of any website. Suppose you can click, you can fill the all details about orders, and then you can submit. So whenever we click on the submit button, behind the submit button, we have use a JavaScript logic. That's why JavaScript is a logical part. That's all about the front end and back end. Right, right, right. Absolutely right. Everyone, absolutely right. Your answer is correct. सो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग Thank you, आप sir. लोग का आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात करूं, मैं एक्सप्लेन करूं अपने आप को, तो मैं बता सकता हूं कि सर फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बेसिकली उद्देश्य होता है इंटरफेस बनाना, ठीक है। इंटरफेस बनाना जिसे जिसे यूजर को आसानी से इस्तेमाल कर सके, जो यूजर मतलब इजी तरीके से उसे समझ सके और यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे जाऊं और मैं टीसीएस की वेबसाइट ओपन करूं, मैं टीसीएस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रहा हूं। आप इस वेबसाइट को देख के बता सकते हो कि एज ए फ्रंट एंड की बैक एंड यहाँ पे वर्क हो रहा है, किया गया है। आप इसको यूआई को देखो, पहले यूआई यूएक्स को आप बता सकते हो ना कि सर एज ए फ्रंट एंड है, जिसे मैं देख रहा हूँ, जिसे मैं देख सकता हूँ, जो यूजर आसानी से उसे यूज कर सके एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, जिसे यूआई यूएक्स क्रिएट कर सके, हम लोग डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या? कोई मुझे बताए, इसे बोल सकते हैं हम लोग? Yes, Yes, sir. sir. ये Front ये end. फ्रंट एंड है सर. यस सर, जो हाँ, दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। राइट राइट, वही वही चीज है कि जो आप देख सके, जो आप क्रिएट कर सके, जो आपको क्रिएट यूआई यूएक्स क्रिएट कर सके, जो यूजर इजी तरीके से उसे यूज कर सके, वही फ्रंट एंड है। इसकी अगर इस पे देखो, फ्रंट एंड की एग्जांपल देखो, अगर इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये बॉटम बोल सकते हैं, एक प्रकार का हेलो सर। बॉटम है। हाँ बताओ। जैसे एप्लीकेशन को कोई एप्लीकेशन अप्लाई करने वाला रहता है ना, नाम, एड्रेस, ये सब, हम्म। तो वो बैकएंड से रहता है। जैसे
फिलअप नहीं, मैं फिलअप आपको फॉर्म बता रहा हूँ, फिलअप जो नहीं रहता है ना, बैकएंड, फॉर्म फिलअप। नहीं बैकएंड वो होता है, देखो मैं बताता हूँ थोड़ी सी, अभी तो हम लोग चलेंगे उस पे, उस पार्ट पे चलेंगे, बैकएंड पे चलेंगे, तो हम लोग तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि आपको एक्चुअल में थोड़ी सी माइंड सेट हो जाए, इसलिए मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से चल रहा हूँ। बैकएंड वो होता है, अगर बैकएंड के मैं बात करूं तो बैकएंड को हम लोग ब्रेन ऑफ वेब डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जैसे बैकएंड का मतलब क्या हुआ, मैंने तो ये यूजर इंटरफेस, मैंने टीसीएस के वेबसाइट अच्छे से इसे यूजर क्रिएट कर लिया, मैं एज ए डेवलपर मैंने इसे फ्रंट एंड अच्छे से क्रिएट कर लिया, लेकिन बैकएंड का इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर बैकएंड की बात करें, अगर विदाउट बैकएंड यूज किए कोई भी एप्लीकेशन 100% वर्क नहीं कर सकता। बैकएंड को इसलिए हम लोग ब्रेन बोलते हैं, ऑफ वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, कि आपको जैसे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो आपको क्लिक करने से पहले आपको एक यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि एक्चुअल में जैसे यूजर यहाँ पे क्लिक करता है तो कौन सी पेजेस उसके आगे खुले, ओपन हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे यूजर जैसे मेल आईडी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का जितना भी ऑप्शन है वहां पे क्लिक कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो डेटा को हम लोग, कहीं ना कहीं तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लॉजिक को तो बिल्ड कर रहे हैं ना बैकएंड के, उसी के अकॉर्डिंग तो ये सब क्रिएट हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो ये सारे चल रहा है। जैसे अगर मेरा मेल आईडी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सब कुछ क्लिक रहा हूँ, तो जैसे मैं सबमिट या लॉगिन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं डेटा तो मेरा सेव हो रहा है, तो डेटा तो मोंगोडीबी या एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में हम लोग सेव कर रहे हैं, लेकिन इसका बैकएंड हम लोग यूज कर रहे हैं, लॉजिक कहीं ना कहीं तो डेवलप कहीं है, करने के बावजूद जैसे हम लोग सबमिट कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में इसको यूज यस करता है सर। हम सर लोग इसको बैकएंड के लिए। ऐसा बोल सकते हैं क्या? सर इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, फ्रंट एंड डेटा को रिप्रेजेंट करने में काम आता है हाँ, और बैक बैक एंड जो होता है वो लॉजिक को, डेटा को मैनिपुलेट करना। हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं। तो देखो, अगर रोड मैप के हम लोग बात करें, अब रोड मैप पे आते हैं कि फेस वन फंडामेंटल में क्या है, एज ए फ्रंट एंड हम लोग फ्रंट एंड उसी टाइप फ्रंट एंड पे हम लोग डिस्कस कर लिए। तो फ्रंट एंड में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन द फ्रंट एंड, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको यूज करते हैं, HTML। सेकेंड हम लोग का क्या होने वाला, CSS। थर्ड क्या होने वाला है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं आपको अगर मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं यहाँ पे, तो बेसिक गिट एंड वर्जन कंट्रोल, अगर हम लोग HTML के बारे में देखें तो HTML है क्या, HTML एक प्रकार का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट की मीनिंग क्या होता है, वेब पेज आर लिंक्ड इन द वेबसाइट विद द हाइपर लिंक। ठीक है, तो अगर HTML का हम लोग बात करें कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, HTML प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेब ब्राउजर, बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज, हम बोल सकते हैं ना HTML को ये सब। यस सर। या HTML का उपयोग बेसिकली हम Yes, लोग sir. वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे TCS के वेबसाइट में गया तो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो ये क्या दिख रहा है, आपको आइकन दिख रहा है, राइट? तो ये HTML है। ये जस्ट वन मिनट, जस्ट, अगर यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक एक ये सर्च बार आइकन दिख रहा है, यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे नेम बार, यहाँ पे पैराग्राफ कुछ, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह दिख रहा है, ये सब क्या है, HTML है। तो बेसिक हम लोग यस यस। अंडरस्टैंडिंग ये, हाँ, HTML का यूज इसलिए करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे मैं सेक्शन ए की बात करूं कि लर्न द बेसिक ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एट द फॉर्म ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, आप वेब डेवलपमेंट में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ी मतलब उपयोग होता है, इसी से हम लोग एक्चुअल में क्रिएट करते हैं, एक्चुअल में सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट को एक बनाते हैं तो वो डायरेक्टली हम लोग ब्राउजर पे उसको देख सकते हैं, तो हम लोग को ये लगता है कि सर एक्चुअल में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, और उसका आउटपुट आपको ऑलरेडी वहां पे शो कर रहा है, आपको लगता है ना? Yes, yes. हाँ, तो बेसिकली यही सिंपल है। तो अगर उदाहरण के लिए, अगर एग्जांपल के लिए हम बात करें तो हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिस्ट टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, इमेज हो गया, सेक्शन हो गया, हाइपरलिंक हो गया, आपका डिफरेंट टाइप का यहाँ पे पेजेस अवेलेबल है HTML में, जिसको हम लोग
एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करेंगे सीखना। ठीक है, देखो क्लासेस की मतलब अगर कोर्सेस आप कर रहे हैं चाहे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप जब स्टार्ट करोगे तो एक्चुअल में आप अच्छे से सीख पाओगे। कल के डेट में मैं अगर कहीं भी आपको बाई चांस आपको अगर मौका मिलता है किसी ट्रेनर, चाहे ट्रेनर का ही चाहे किसी कॉलेजेस में चाहे कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ सर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, 5 आदमी टीम को मैं लीड कर सकता हूँ, अच्छे से A to Z सब कुछ बता सकता हूँ, राइट। Yes, sir. हाँ, अगर मैं Yes, sir. सेकंड बात करूं कि अंडरस्टैंड वर्जन कंट्रोल एंड गिट अप ऑफ द मैनेजिंग कोड्स ऑफ द चेंज। अगर मैं सीएसएस अभी इस पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीएसएस की बात कर रहा हूं, तो सीएसएस एक प्रकार का कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसका बेसिकली हम लोग उपयोग वेब पेज Hmm. को स्टाइल और बहुत आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। बेसिकली स्टाइलिंग और इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे दिखाने के लिए बेसिकली हम लोग सीएसएस के यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में देखूं, इसी लाइन पे देखूं, तो इसका देखो पहले फ्रंट, इसका बैकग्राउंड कलर, इसका लेआउट, इसका एनिमेशन, ये सब हम एक्चुअल में चेंज कर रहे हैं। अगर मैं टीसीएस के वेबसाइट पे जाऊं, आप देख रहे हो ये तो मैंने एचटीएमएल से इसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लेकिन स्टाइलिंग एक ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब स्टाइलिंग के द्वारा कि हम अपने जितनी भी वेब पेजेस एप्लीकेशन को इसे बेस्ट तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं, जिसे यूजर यूजर को देखने में अच्छा लगे। जैसे यूजर अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने टीसीएस क्रिएट कर लिया, टीसीएस का वेबसाइट ऑफिशियल क्रिएट कर लिया, मैं स्टाइलिंग इसलिए जरूरी रहती है कि यूजर इसे इंटरेक्ट हो सके। अगर मैं अच्छा यहाँ पे एक बार यूजर आता है इस वेबसाइट पे तो उसको अच्छा लगे, फिर वो दोबारा आना चालू करे इस वेबसाइट पर, राइट। Yes, sir. हाँ, उसके बाद हम लोग जावा स्क्रिप्ट का बात करते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज में इंटरेक्टिव जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग वेब डेवलपमेंट का ब्रेन भी बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग यहीं से लॉजिक बिल्ड करते हैं कि एक्चुअल में आपकी बटन कैसे वर्क करे, आप किसी पेज में लॉगिन बटन कैसे क्लिक करें, आप इस जैसे नैप बार पे किसी सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट पेज कैसे ओपन हो रहा है, ये सारे जितने भी आप बोल सकते हो कि रोटेट होती जा रही है, ये सारे जावास्क्रिप्ट के द्वारा ही हम लोग करते हैं, राइट। इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बटन बटन क्लिक, फॉर्म वैलिडेशन और लाइव इन अपडेट, किसी भी बटन पे हम अपडेट करते हैं, किसी भी बटन को हम सबमिट करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये सब लॉजिक हम लोग बिल्ड कर रहे हैं कैसे? जावास्क्रिप्ट से ही लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, राइट। Right, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ, राइट राइट राइट। सो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट का बात करें कि गिट एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, गिट ऑन गिट ऐप था। गिट एक प्रकार का क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसे हम लोग मैनेज कोड कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजिंग कोड चेंजेस कर सकते हैं एक प्रकार का। और गिटहब क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जहां हम लोग अपने कोड को उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं गिटहब प्रोफाइल पे, जहां हम लोग डिफरेंट टाइप के टीम में वर्क कर सकते हैं, जहां हम अपने कोड को और डिप्लॉय करने के बाद मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल गिटहब के हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको प्रोजेक्ट में एनरोल कर दूं, कल के डेट में एक क्लाइंट प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैंने एनरोल कर दिया। एनरोल करने के बाद 5 मेंबर, एक पुणे से काम कर रहा है, एक बेंगलोर से काम कर रहा है, एक चेन्नई से काम कर रहा है, एक बिहार से काम कर रहा है, एक अमेरिका से काम कर रहा है। तो पर डे आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, राइट? कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर होनी चाहिए ना कि जहां हम लोग एक मर्ज करके पांचों कैंडिडेट जो भी हम लोग डेवलपर हैं एक दूसरे का कोड शेयर कर, एक दूसरे का कोड देखें, एक दूसरे का डिबॉगिंग, एक दूसरे को बता सके कि आप इस प्रोजेक्ट पे ये कर रहे हो। जैसे डिवाइड, काम को डिवाइड कर देना, समझ रहे हैं? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली हम लोग गिटहब की इसलिए यूज कर सकते हैं कि जहां हम अपने कोड को डिप्लॉय कर सकें और डायरेक्टली डिफरेंट टाइप के जो भी अगर यूजर जो भी डेवलपर मेरे कोड को देख रहा है, अगर लगता है कि हाँ इस कोड में यहाँ पे डिबॉगिंग है, थोड़ी सी बग है, यहाँ पे एरर है, ये है, और भी इसे इम्प्लीमेंट करके अच्छे बनाया जा सकता है,
तो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को वो मर्ज कर सकता है, या तो डेवलप वो आपको एक रिक्वेस्ट, हैंडलिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, देन एक्सेप्ट करने के बाद एक्चुअल में आप उसके साथ वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली गिटहब के यही यूज होता है कि यहाँ पे हम लोग टीम से ही काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं फेज 2 का बात करें फेज 2 के हम लोग बात करें तो बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर लिया कि बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो बैकएंड में देखो, बैकएंड में अगर मैं बात करूं तो नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी एटलस, मोंगोडीबी कैंपस, पोस्टमैन, ये एक प्रकार का इतनी 4 to 5 स्किल प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है जो हम लोग बैकएंड के एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। तो आप अगर पूछ सकते हो कि सर हम बैकएंड के लिए जावा नहीं यूज कर सकते हैं, हम बैकएंड के लिए पाइथन यूज नहीं कर सकते हैं, हम जावा के लिए पीएचपी नहीं यूज कर सकते हैं, हम पाइथन के लिए पीएचपी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का मतलब यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, या तो बेसिकली हम लोग इसीलिए इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम नोड जेएस की बात करें तो डाइव इनटू नोड जेएस ऑफ द सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड द इवेंट ड्राइवन ऑफ द नॉन ब्लॉकिंग ऑफ द इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये बैकएंड के लिए एक बैकएंड का लैंग्वेज होता है जहां हम लोग बैकएंड का अपने बहुत सारे कोड इंप्लीमेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अगर हम सेकंड बात करें लर्न एक्सप्रेस जेएस, लर्न एक्सप्रेस डॉट जेएस एक a web application framework for the Node.js and to simplify server side of the development। बैकएंड का अगर आप बोल सकते हैं कि बैकएंड का एक बैकएंड एक्सप्रेस जेएस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है बैकएंड का नोड जेएस का। इसके द्वारा हम लोग सर्वर को क्रिएट करते हैं, साइट को सर्वर साइड डेवलपमेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, और आप अपना होस्टिंग और सर्वर को हम अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोर, अगर हम थर्ड पे Yes, जाए sir. मोंगोडीबी, तो मोंगोडीबी के हम लोग बेसिक, मोंगोडीबी एक प्रकार का डेटाबेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी पॉइंट पे मैंने मेंशन किया कि एक्सप्लोर मोंगोडीबी इन नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड अंडरस्टैंड CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन मीनिंग C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। ठीक है, डिलीशन। या राइट। तो learn about the mongoose and MongoDB object modeling in the Node.js। आप बेसिकली दोनों डेटाबेस की यूज कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि MongoDB ही यूज करना है, आप जो भी डेटाबेस लेयर एक प्रकार का स्टोर होता है जहां हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे टीसीएस वेबसाइट में जाएं, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी, अगर जिसके पास रजिस्टर मतलब जो ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया, रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद आपका जो डेटा जैसे नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका A to Z जो भी मैंडेटरी आप रजिस्टर में लग रहा है, वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है ना, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हम तो कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यस। डेटाबेस के यूज कर सकते हैं जहां हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। समझ में आया? तो डेटाबेस को हम Yes, लेयर sir. बोल सकते हैं। डेटाबेस लेयर होता है जो स्टोर होता है, ये नो एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, और मोंगोडीबी होता है। तो बेसिकली आप जो भी एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, मोंगोडीबी भी यूज कर सकते हो डेटा को स्टोर करने के लिए। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं। अगर मैं उसके बाद बात करूं कि मास्टर प्रिंसिपल ऑफ द रेस्टफुल एपीआई डिजाइन एंड द बिल्ड एपीआई यूजिंग एक्सप्रेस के द्वारा हम लोग एक प्रकार का रेस्टफुल एपीआई को डिजाइन करते हैं। एपीआई क्या, किसी को मालूम है एपीआई क्या है? व्हाट इज द एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। Yes, sir. क्या है It is the कुछ मुझे bridge between front end and back end, sir. It passes the data from back end to front end ओके, to राइट display in a website. To connect Not the only front end that, and but back end. it's also a specific code that we can directly import from
other website or something. Right. Absolutely right. Anyone? कोई और बोलना चाहता है? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कोई किसी। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। अगर एपीआई की बात करो तो एपीआई एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एक्सप्रेस जेएस से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल समझना आपको, आपको बहुत ज्यादा ये इंटरव्यूअर में काम आएगा। मैंने आप देखो, मैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एससीएल का ऑफिशियल पेज पे जा रहा है, ऑफिशियल पेज पे जा रहा है। जैसे मैंने एससीएल यहाँ पे क्लिक किया, एससीएल क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक कर रहे हैं, तो ये ओनली फॉर, मुझे लगता है कि 0.5 सेकंड के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है। ये डेटा किसके द्वारा आ रहा है? ये डेटा एपीआई के द्वारा आ रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा। समझ में आया? यस सर। ये पीआई Yes, कैसे sir. काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एससीएल यहाँ पे क्लिक किया, एससीएल क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, सर्वर साइड से कम्युनिकेट करेगा। ये आपका सर्वर डेटाबेस, मैंने अभी जो बताया, डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर है। स्टोर होने के बाद ये क्या करेगा, लोकल आपने जितनी भी डेटाबेस होगा, लोकल डेटाबेस के पास सारे डेटा को भेज देगा। ये डेटा वहां से कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने के बाद सारे डेटा को बता देगा कि ऑलरेडी यूजर को एक एससीएल का प्रोफाइल चाहिए। तो ये डेटा डिफरेंट टाइप के डोमेन पे, डिफरेंट टाइप के डेटाबेस पे मतलब जाके वर्किंग करने लगा, रनिंग करने लगेगा। जैसे रन करने के बाद जैसे ऑलरेडी डेटा उसके पास स्टोर हो जाएगा, मेल का आएगा, वो डायरेक्टली आपको इनपुट उधर से आउटपुट दे देगा। समझ में आया? जैसे मैं अगर एग्जांपल का बात करूं, एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, कि मेरे ट्रेनर जो थे ये एग्जांपल बताए थे कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग खाने खाने के लिए 3 फ्रेंड जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, हम लोग बैठे हैं। एक मालिक अपना सीट पे बैठा हुआ है और वेटर ऑलरेडी वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आप किससे जाके बोलोगे कि मुझे खाना खाना है, जैसे मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, जो भी खाना है आपको, किससे बोलोगे? हेलो सर। Better से हेलो। better से. वेटर से बोलोगे ना, राइट। तो वेटर से Yes, sir. बोलने का मतलब, जैसे हम लोग तो वो हो गया एक तरह से फ्रेंड गए। हाँ, इंटरमीडिएट. मैंने वेटर से, आप डायरेक्टली मालिक से तो नहीं बोल सकते ना कि भैया एक काम करो, मुझे ये फूड चाहिए, मुझे प्रोवाइड कर दो। जैसे आप बोलोगे वो तुरंत मार के वहां पे सर। कुछ ना कुछ बोलेगा। हेलो, समझ में आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. Continue. हाँ Yes, sir. हाँ, Yes, sir. या ओके ओके। तो देखो, जैसे आप बोलोगे, ये रिकॉर्डिंग, ये सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन ऑन है ना, रिकॉर्डिंग का? Yes, sir. Yes, sir. ऑन है। Recording लिख रहा है ऊपर. ओके ओके। देखो, तो वही मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ कि जैसे आप कम्युनिकेट करो, आप डायरेक्टली मालिक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो कि भैया मुझे पिज्जा खाना है, आप डायरेक्टली लाके दो, वो नहीं देगा। आप किससे कम्युनिकेट करोगे? आप कम्युनिकेट कर रहे हो वेटर से। वेटर क्या है? एक प्रकार का एपीआई है। आप कम्युनिकेट किया वेटर से, वेटर ने पूछा कि भैया आपको क्या चाहिए, आपने बोला कि भैया मुझे पिज्जा चाहिए, पिज्जा ला के दे दो। उसने जाया गया, बिल आपके पास आपको दे दिया, उसने गया मालिक से बोला कि भैया ये कैंडिडेट, ये यूजर बैठे हुए हैं, इनको पिज्जा खाना है, आप पिज्जा दे दीजिए। वो बोलेगा ठीक है, मुझे बिल सबमिट कर दो, मैं पिज्जा लेके जाओ। तो पिज्जा आपके पास, आपके आपके टेबल पे आ रही है। ये क्या है? डायरेक्टली एपीआई है। यही इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एपीआई यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो वेटर का काम कर रहा है, आपको दोनों साइड से कम्युनिकेट कर रहा है, यूजर से भी कर रहा है और डायरेक्टली डेटाबेस से भी कर रहा है। समझ में है? यस सर। ये एग्जांपल समझ में है? बेस्ट कैसे लगा एग्जांपल ये? अच्छा एग्जाम्पल था तो सर। बोलो यार।
सर ये एग्जांपल अच्छा था, समझ में आ गया yes sir, एपीआई का सटीक। फंक्शंस कैसे काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं फेज 3 में। फेज 3 हम लोग का फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। फिर फ्रंट एंड में देखते हैं रोड मैप में, तो फ्रंट एंड रोड मैप में हम देखते हैं कि रिएक्ट बेसिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्ट प्रॉप्स क्या होता है, रिएक्ट राउटर क्या होता है, इसका हम कुछ मेंशन पॉइंट किए हैं। ये सारा रोड मैप मैंने खुद से क्रिएट किया अपना। मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि familiarize yourself with the React, a JavaScript library for building user interface। मैं आपको अगर बोलूं कि React JS एक प्रकार का JavaScript का लाइब्रेरी है, जिसके द्वारा हम लोग एक बिल्डिंग यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक प्रकार का सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। ये बहुत इंटरेक्ट होता है। ये अगर आप रिएक्ट जेएस पे काम करते हो, एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाते हो, एक्चुअल में कोई वेबसाइट, तो ये जो वेबसाइट होनी है एक्चुअल में बहुत बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, ये डायरेक्टली बहुत स्मूथ होने वाली है। अगर रिएक्ट जेएस का हम लोग बात करें तो रिएक्ट जेएस आपको मालूम है कि किसका फ्रेमवर्क है? सॉरी, फ्रेमवर्क तो फ्रंट एंड का है। और इसे एस्टेब्लिश किसने किया है, किसने बनाया फेस रिएक्ट को? फेसबुक ने। हाँ, राइट राइट राइट, फेसबुक ने। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे लोग, तो ये थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। तो अगर सेकंड बात करूं कि अंडरस्टैंड रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉप एंड स्टेट मैनेजमेंट, हम लोग जो रिएक्ट में अगर स्टडी करेंगे, लर्निंग करेंगे, तो वहां पे हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉप्स, स्टेट मैनेजमेंट, ये सब होता है क्या, एक्चुअल में इसका यूजेस क्यों है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट का बात करें कि लर्न रिएक्ट राउटर फॉर हैंडलिंग नेविगेशन इन रिएक्ट एप्लीकेशन, हम इसके द्वारा राउटर को भी क्रिएट कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं, राइट। फिर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर, जब फ्रंट एंड का ऑलरेडी अल्टरनेट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं कि सर रिएक्ट जेएस, एंगुलर और व्यू, राइट। अगर 3 यहाँ पे फ्रेमवर्क है तो फिर हम लोग रिएक्ट जेएस क्यों यूज कर रहे हैं? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है। यस सर, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड है। हाँ, राइट राइट राइट। तो देखो अगर मैं कंपनी की Built बात a करूं, मैं virtual DOM and देखो मैं यहाँ पे अगर कंपनी की बात करूं कि जितनी भी मार्केट में अगर कंपनी एस्टेब्लिश आप देख रहे हो, तो कोई कंपनी एंगुलर पे वर्क करती है, कोई कंपनी व्यू पे वर्क करती है, कोई कंपनी रिएक्ट पे वर्क करती है। लेकिन मोस्टली अगर मार्केट में आप देखो आज के सिचुएशन में आईटी सेक्टर में, तो ओवरऑल 60% जितनी भी कंपनी है वो सारी रिएक्ट जेएस पे ही एस्टेब्लिश हुई है, रिएक्ट जेएस पे ही काम कर रही है। एंगुलर पे 20%, 30% एंगुलर पे वर्क करती है। ओनली फॉर 10% जो डेवलपर होते हैं, जो कंपनी होती है, वो 10% व्यू पे काम करती है। इसलिए मार्केट में अभी रिएक्ट जेएस का बहुत बड़ी डिमांड है, राइट। यस सर। यस हाँ, सर। Yes, sir. ओके। तो अगर हम मैं फेज 4 में जाऊं तो फिर फोर्स में जाने के बाद फुल स्टैक इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कनेक्टिंग बैकएंड विथ फ्रंट एंड स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट। ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि हाउ टू कनेक्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, तो आप क्या बोलोगे? कैसे कनेक्ट करते हैं एपीआई। फ्रंट एंड एंड बैक एंड को? सर यूजिंग एपीआई। यूजिंग एपीआई। नेक्स्ट, और कोई, और भी इसका कोई मेथड? अच्छा, एटलस का नाम सुने हो आप? या वो है डाटाबेस हैंडल करता है। एटलस के द्वारा भी हम लोग, मैंगो आपने डेव। सही बोला, एपीआई के द्वारा भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्रिएट ऑफ एच टी सॉरी फ्रंट एंड एंड बैक एंड, एपीआई के द्वारा हम लोग उसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एटलस के द्वारा भी हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि अमन है, वो फ्रंट एंड में काम कर रहा है, मैं बैक एंड में काम कर रहा हूँ। हम लोग दोनों अपन जो भी वर्क है, जो भी है, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को ऐड करना चाहते हैं, कि एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है, क्या है। मैंने अभी जितना भी हम लोग समझा,
तो हम लोग बेसिकली इसको दो मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं, एटलस के द्वारा भी और एपीआई हैंडलिंग के द्वारा भी, राइट। तो देखो वही यहाँ पे मेंशन है, ओके इंटीग्रेट सर। द एक्सप्रेस डॉट जेएस बैकएंड। एक्सप्रेस डॉट जेएस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है बैकएंड का, और विद द रिएक्ट यूजिंग एक्सियो विद द फेच ऑफ एपीआई कम्युनिकेशन। हम लोग एपीआई के द्वारा भी बैकएंड और फ्रंट एंड को दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करूं, सेकंड पॉइंट है एक्सप्लोर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक रिडक्स फॉर द हैंडलिंग स्टेट इज द लार्जर रिएक्ट एप्लीकेशन। हम रिएक्ट एप्लीकेशन को लार्ज और बहुत बड़ी एप्लीकेशन को भी हम वहां पे हैंडलिंग कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप फेसबुक यूज करते हो, फेसबुक पे मुझे लगता है कि समथिंग 3 बिलियन से भी ज्यादा यूजर होंगे, राइट। यस सर। हाँ, Yes, sir. फिर भी आप देखो रिएक्ट, आप फेसबुक किस पे एस्टेब्लिश हुआ है, रिएक्ट जेएस से। फेसबुक अगर रिएक्ट जेएस से ही क्रिएट हुआ है फेसबुक, ठीक है, उसका ए टू जेड जितनी भी सोर्स है रिएक्ट जेएस से ही उसको क्रिएट किया गया, एप्लीकेशन को क्रिएट किया है। लेकिन आप तब भी देखो 1 बिलियन से 3 बिलियन समथिंग से अभी अबव ही होगा, इतना यूजर एक बार इसे यूज करते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फेसबुक कभी देखे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्मूथ तरीके से एक यूजर इंटरफेस अच्छे तरीके से काम करता है, उसका सर्वर सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह, राइट। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये बेसिक है। अब मैं अगर फेज 5 की बात करूं, फेज 5 एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एडवांस कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, मिडिलवेयर एंड एडवांस एक्सप्रेस सर डेवलपमेंट। सर पीएचपी नहीं है क्या इसमें? नहीं, मैंने अभी भी बताया आपसे कि बैकएंड के लिए आप पीएचपी भी यूज कर सकते हैं, बैकएंड के लिए जावा भी यूज कर सकते हो, बैकएंड के लिए आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, बैकएंड के लिए आप नोड जेएस भी यूज कर सकते हो, बैकएंड के लिए आप रिएक्ट नेटिव नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसको गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, आप जिस पे डिपेंड करो। आप पीएचपी पे वर्क करना चाहते हो तो पीएचपी से आप बैकएंड क्रिएट करना चालू करो, आपको पाइथन लगता है पाइथन से करो, आपको जावा लगता है जावा से करो। लेकिन हर किसी का फ्रेमवर्क है, जैसे अगर बैकएंड का बात करूं तो बैकएंड नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, राइट। ये सब एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। वैसे ही जावा में आप जाओगे तो स्प्रिंग बूट हो जाएगा, आप पाइथन में जाओगे, पाइथन के साथ जाओगे तो आपको ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है, Django, कौन सा? Django and Flask. हाँ हाँ, राइट राइट राइट। Django, इसके द्वारा, Django. हाँ हाँ, डिजेंगो द्वारा आप यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे फ्रेमवर्क है जो एक्चुअल में आप जब क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो बहुत सारा यहाँ पे इंटरफेस प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होती है। तो आप जैसे जैसे अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट में जैसे जैसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको एक्चुअल में सीखने को वहीं से मिलेगा कि एक्चुअल में आप वर्क कैसे कर पा रहे हो, कैसे टीम काम कर पा रही है, फ्रंट एंड टीम, बैक एंड टीम, डेटाबेस टीम, टीम मैनेजमेंट टीम, टीम लीड, आपकी डिबॉगिंग टेस्ट, डिबॉगिंग डेवलपमेंट टीम, आपका ये सपोर्टिंग टीम, ये बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारी टीम एक्चुअल में वर्क करता है, सब एक दूसरे से ही ऐड होते हैं, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो, उसको कोई नहीं है कि सर मैं पीएचपी यूज नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअल में थोड़ी सी बहुत सारी कंपनी, जहां तक मुझे नॉलेज है कि 60 ओनली फॉर 40% बोल सकते हैं कि पीएचपी के आजकल यूज हो रही है बैकएंड के लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीएचपी यूज नहीं कर सकते हो, बेसिकली आप पीएचपी भी यूज कर सकते हो, आप जो भी क्रिएट कर सकते हो, आप बैकएंड जो भी आपको लगे उसके द्वारा भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हम्म देखो अगर फेज 6 का बात करूं, हम फेज 6 में ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग। तो सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि सर मैंने प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिया फ्रंट एंड बैक एंड का, मैं टेस्टिंग कैसे करूं? टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना अपने प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे दो दो पॉइंट ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है, ऑप्टिमाइज योर मन स्टैक एप्लीकेशन फॉर
परफॉर्मेंस कंसिडरिंग द क्लाइंट एंड सर्वर साइड ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं सेकंड पॉइंट का बात करूं यहाँ पे, द एक्सप्लोर टेस्टिंग फ्रेमवर्क लाइक एग्जांपल जेट, मोचा एंड इम्प्लीमेंट यूनिट ऑफ द इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉर योर एप्लीकेशन। जब हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो एक्चुअल में टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजा जाता है इस प्रोजेक्ट को। हम लोग अगर बात करें, हम लोग एक्चुअल में मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट प्रोजेक्ट को। जैसे अगर क्लाइंट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, क्लाइंट प्रोजेक्ट काम करने के बाद जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद ए टू जेड सारे वो टेस्टिंग डेवलपर के पास, जितने भी डेवलपर, जितने भी और टीम, डिफरेंट टाइप के टीम वर्क करता है, वो सारे टेस्ट केस आपको टेस्टिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट करता क्या है? टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग अभी मैंने बताया डोमेन में। तो एक्चुअल में वो डिबॉग देखते हैं कि एक्चुअल में आपकी जो जो प्रोजेक्ट वर्क हो रही है, एप्लीकेशन वर्क हो रही है, वहां पे कोई डिबॉग तो नहीं है, कोई कुछ मतलब कमी, एरर वहां पे ये होना। समझ रहे बात को? यस समझ सर। में आ रहा है? हम्म। तो बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कि मेरा प्रोजेक्ट जो है, मेरा जो एक्चुअल में एप्लीकेशन है, वो बहुत अच्छे से वर्क करे, यहाँ पे कोई डिबॉगिंग ना हो, कोई एरर हैंडलिंग ना हो, कोई एप्लीकेशन में सर्वर डाउन के मतलब पोजीशन ना हो। ये सब हम लोग चेक करने के लिए हम लोग ऑप्टिमाइज टेस्टिंग करता है। अगर मैं फेज 7 का बात करूँ, द कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ द ए डेवलपमेंट की बात करते हैं, CI/CD पाइपलाइंस। तो इसके लिए हम लोग सेट अप CI/CD पाइपलाइन ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत अंदर की बात है। आप टेस्टिंग में, अगर टेस्टिंग प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, मैनुअल टेस्टिंग में, ये सब टेस्टिंग एक प्रकार का प्रोफाइल है जहाँ एक्चुअल में डेवलपर वहां भी वर्क करते हैं आप लोग। तो उसमें इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा सा आप देख लेना। अगर मैं फेस 8 की बात करूं, फेस 8 में हम लोग क्या, एडवांस टॉपिक में, तो ग्राफ क्यूएल ऑप्शनल सर्वलेस आर्किटेक्चर 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 सॉरी, ऑप्शनल में हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्लोर रेस्टफुल एपीआई, अंडरस्टैंड द सर्वर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी लाइक AWS। ठीक है, आप AWS का नाम सुने हो डेवलपमेंट करने, डिप्लॉय करने के लिए कोड को? Yes, sir. Yes, तो sir. यहीं से हम लोग, हाँ, यहीं से हम लोग डिप्लॉय करते हैं कोड को। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है एज ए फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, मैनुअल टेस्टिंग, सारा टेस्टिंग, डिबॉगिंग वगैरह सब कुछ क्लियर है। अब लास्ट में है आपको इस प्रोजेक्ट को, इस कोड को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद आपको स्पेसिफिक एक डोमेन आएगा। जब आप एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उसे डिप्लॉय करोगे, तो ये सब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे ए टू जेड डोमेन क्या होती है, ये सब आइडिया लग जाएगा बेसिक। बस ओनली थोड़ी सी नॉलेज ये रखो कि हाँ, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने कोड को, AWS होता क्या है, कैसे ये सब प्रोसेस होती है। तो आप चैट जीपीटी से या तो गूगल से, बहुत सारे अवेलेबल, वहां से आप देख सकते हो। तो फाइनली ये सब होने के बाद आप जब फेस 9 में जाओगे, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप बिल्ड ए फुल स्टैक प्रोजेक्ट। जब आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, एज ए फ्रंट एंड, एज ए बैक एंड, एज ए डेटाबेस, ठीक है, उसके बाद से अप्लाई योर नॉलेज टू बिल्ड योर कॉम्प्रेहेंसिव मर्न स्टैक प्रोजेक्ट। जितने भी आप सीखोगे, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, टेलविन CSS, बूट स्ट्रैप, रिएक्ट JS, एंगुलर, व्यू, एक्सप्रेस JS, मोंगोडीबी एटलस, कैंपस, पोस्टमैन, गिटहब, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पाइथन, अगर जो भी बैकएंड में सीखना, यहाँ पे जब आप एस्टेब्लिश करोगे एक प्रोजेक्ट को, तब आपको नॉलेज होगा कि एक्चुअल में आप काम किए हो, एक्चुअल में आप, हाँ, एस्टेब्लिश हो। अब नेक्स्ट टाइम आप क्लाइंट प्रोजेक्ट में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग का? यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, कैसे sir. लगा, मतलब समझाने, अगर कैसे आपको, मतलब एक बहुत अच्छे से समझ में आना। अब अगर अगर कोई पूछे रोड मैप के बारे में, कोई आपको अगर किसी अन्य कैंडिडेट को, चाहे कोई अगर फ्रेशर कोई आपसे कम्युनिकेट करता है, चाहे कोई भी, तो आप अच्छे से समझा सकते हो कि एक्चुअल में फ्रंट एंड बैक एंड में कौन कौन सी स्किल होती है, फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है जिसे में रिक्वायर्ड होता है हमें सीखना, लर्निंग करना।
Yes, sir. हम्म तो ये सब है, सबसे बेटर है। तो सबसे मेरा यही रोड मैप रहेगा कि सबसे बेटर है कि आपको समझने के लिए आपको एक गिटहब प्रोफाइल बनानी है। हर किसी का जो भी डेवलपर वर्क कर रहा है उसको एक गिटहब प्रोफाइल होनी चाहिए, एक लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से गिटहब को यूज करना आना चाहिए, गिट को यूज करना आना चाहिए। तभी एक अपना जो भी प्रोजेक्ट, अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी आप बना रहे हो, कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, सीधा डिप्लॉय करो गिटहब पे अपने प्रोफाइल पे। उसे बनाने से आपका स्ट्रॉन्ग एक प्रोफाइल बनेगा आपका। अगर कहीं भी क्लाइंट या कहीं भी यूजर या कहीं भी कोई भी कंपनी में एस्टेब्लिश हो तो आपको आगे बेनिफिट के लिए बहुत बड़ी ये चीज एस्टेब्लिश हो सकती है। अच्छा है। तो सबसे ये रहेगा अच्छा, रोड एक मैप तो। क्वेश्चन। बताओ। सर, आप ये सब टॉपिक कवर करोगे मतलब 10 दिन में? तो इतना नहीं होगा, नहीं देखो, या 10 डेज बस में तो, अच्छा इंट्रोडक्शन? नहीं, 10 डेज में ये सब टॉपिक तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, कोई भगवान तो नहीं है हम। आपको भी मालूम है कि ऐसे मर्न 6 मंथ, ये 6 मंथ लगता है ऐसे अच्छे से पढ़ने में। ऐसा तो नहीं है कि मैं हाँ। ओवरऑल अगर अच्छे से मतलब कुछ भी पढ़ा दूं, कुछ भी 10 डेज, अगर 1 मंथ ही पढ़ा दूं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप एक बेस्ट यूट्यूबर चाहे बेस्ट एक डेवलपर हो जाओगे, नहीं हो जाओगे ना। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में आप देखोगे कि सिक्स नहीं नहीं। मंथ 8 मंथ इसका ट्रेनिंग चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस ट्रेनिंग में, हम्म। मेरा देखो मेरा खुद का पर्पस है, मैं खुद से अपना बताऊं, मेरा खुद ही पढ़ाने के एक अलग तरीका है। मैं ये नहीं करता हूँ कि भाई अगर सामने वाला पर्सन अगर टेनी कैंडिडेट है, कुछ भी कैंडिडेट है, मतलब कुछ भी बहुत सारी है, तो मैं उसे स्ट्रेटजी बाई एक फॉलो तरीका से, जैसे रोड मैप मैंने फॉलो किया वैसे ही हम फॉलो करेंगे। चाहे 10 डेज में मैं HTML CSS एंड टेलविन CSS या जावास्क्रिप्ट ये कंप्लीट कर लूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बहुत बात होगी कि अगर आप ट्रेनिंग में 10 डेज के ट्रेनिंग में कुछ सीख के जाओ तो ये सबसे बड़ी आपके लिए भी एक बोल सकते हैं कि एक बहुत मतलब इजी तरीके से समझने के होगा, और मुझे भी होगा। मैं सारी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी एक एक घंटा ये बोल दूं वो बोल दूं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। ये सब दिमाग से ऊपर चलेगा, फिर फीडबैक निगेटिव आएगा। आप डायरेक्टली हाँ बोलोगे या तो तो सर को पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या तो मुझे समझने का तरीका सही नहीं है। हाँ तो सर, फिर वो जैसे इंटरव्यू वगैरह होगा उसमें ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे, या फिर जो आप पढ़ाओगे सिर्फ वो? नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा मैं ही इंटरव्यू लूंगा उसमें भी। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। बस यही हम्म डाउट था, और कुछ सर नहीं। मेरा एक डाउट था सर। बताओ। सर सर डाउट ये था कि फेज 3 में जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिएक्ट है, सर रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं 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 बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं हम लोग। एक बात नहीं, बिल्कुल। बताओ कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपको, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली का ले लो चाहे नोएडा का ले लो। आप सेक्टर 15 में हो अभी, मतलब अभी रिसेंटली में सेक्टर 15 में आपका फ्रेंड कहाँ है सेक्टर 18 में। तो आप दोनों को सेम नहीं बोल सकते हो ना। तो जावा जी स्क्रिप्ट क्या है, सर। जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार का फ्रेमवर्क, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग स्किल्स है। ठीक है, राइट। और ये रिएक्ट क्या है, रिएक्ट एक प्रकार का फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का। जी सर। हाँ। तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते। आप अगर अगर मैं कोई आपसे इंटरव्यूअर चाहे कोई आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर ले, ठीक है भैया आपने तो बोला कि रिएक्ट जेएस सेम है, जावा स्क्रिप्ट है, तो फिर हम एंगुलर क्यों यूज करूं, फिर हम व्यू में क्यों जाऊं। कोई ये भी तो पूछ सकता है ना। तो फिर तो वहां पे अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको, लेकिन अगर बाई चांस कोई ये पूछ दे तो फिर तो आप गलत ही बताओगे उसको। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज में इंटरेक्टिव जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, एक लॉजिक बिल्ड करने के लिए इसका बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं। और रिएक्ट जेएस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस एक प्रकार का जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग हम लोग मॉडर्न डायनेमिक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब समझ में आया आपको। समझ में आ गया सर। हम्म तो ये है जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है, राइट। रिएक्ट जेएस एंगुलर व्यू
लेकिन ये दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी पे काम करता है। रिएक्ट जेएस का बेसिकली हम लोग यूज इसलिए किए कि हम लोग जब डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट में वर्क करते थे तो हम लोग को फाइल, जैसे अगर एक प्रोजेक्ट में वर्क करते थे जहाँ 10,000 से अबव फाइल वगैरह बनते थे, तो आप हर फाइल को थोड़ी वहां पे जाके ऐड करोगे कि सर HTML का ये फाइल था, ऐसे था। आपको मिसमैच हो जाता था ना। लेकिन रिएक्ट जेएस एक ऐसा जी सर। फ्रेमवर्क है जहां आप सब कुछ एक ही कंपोनेंट में, डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट में प्रॉप्स में, मतलब डिफरेंट टाइप का एक फाइल ऐड कर सकते हो और सारे को ऐड कर सकते हो, फिर आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। जी जी सर, समझे? समझ गया सर। हाँ। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं रोड मैप, आप रोड मैप यही देखोगे जो रोड मैप मैंने बताया है। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बिल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे वही रोड मैप। अच्छा आप लोग, अब मैंने दो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क भूल गए। टेलविन सीएसएस एंड, सॉरी, टेलविन सीएसएस एंड बूट स्ट्रैप। टेलविन सीएसएस क्या है? तो टेलविन सीएसएस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है सीएसएस का। इसका बेसिकली यूज हम लोग क्यों करते हैं कि सीएसएस का, सर सीएसएस अगर सर किसी, हाँ स्टाइलिंग के लिए। हेलो सर। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, टेलविन पे स्टाइलिंग तो के लिए। कोड पहले 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 से कोड डाला रहता है ना इसमें। नहीं देखो, मैं बता रहा हूँ आपको कि सीएसएस, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आपको सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, अगर मैं स्टाइलिंग की बात करूं तो यहाँ पे समथिंग 3,000 4,000 स्टाइलिंग के लिए आप कोड लिखोगे, राइट? लेकिन इतना कोड लिखोगे तो आपको भी लगेगा यार भैया मैं 10,000 से अबाव कोड लिख रहे हैं सीएसएस के, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो वही एस्टेब्लिश, इजी तरीके से इसको एस्टेब्लिश करने के लिए सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप टेलमी सीएसएस। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां आपको सीएसएस का पूरा स्टाइलिंग कोड नहीं लिखना पड़ता है, ओनली फॉर, मतलब बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपकी, बहुत कोड को इजी तरीके से समझना लिखना के लिए हम लोग बेसिक इसका यूज कर सकते हैं कि एक ही फाइल में इसको हम लोग, जैसे सीएसएस के लिए हम लोग क्या करते थे, सीएसएस के लिए एक अलग फाइल बनाना पड़ता था, राइट? जी Yes, सर। sir. हाँ, Yes, sir. सीएसएस के लिए हम लोग को अलग फाइल बनाना पड़ता था। लेकिन अगर एज ए फ्रंट एंड आप किसी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो आप टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल कर सकते हो, उसको जैसे सेटअप कर लोगे एज ए रिएक्ट जेएस में, एज ए सिंपल एचटीएमएल सीएसएस में, किसी भी प्रोजेक्ट में ऐड कर लोगे, तो आपको मतलब डिफरेंट टाइप का फाइल नहीं बनाना पड़ेगा, इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा सीएसएस फाइल को। ओनली फॉर आप एक इसे सेटअप करने के बाद आप HTML को कोड लिखोगे डायरेक्टली, वहीं पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने कोड को। फॉर एग्जांपल मैंने एक पी टैग लिया, पी टैग में मैंने एक ये आईडी लिया, चाहे जो भी हो, आईडी के अंदर मैं एक नेम दे दिया, वहीं से आप स्टाइलिंग करना शुरू कर दोगे, राइट? लेकिन सीएसएस में क्या होता था कि मुझे एक अलग फाइल बनाना पड़ता था, राइट? तो इसके लिए हम लोग बेसिकली टेलविन सीएसएस को यूज किया। टेलविन सीएसएस एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है सीएसएस का। यहाँ पे हमको इजी तरीके से समझने को, कोड को कम लिखना और बहुत ज्यादा टाइम में इसको स्पीड देना, इसलिए हम लोग बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप क्या है? तो बूट स्ट्रैप एक प्रकार का सीएसएस का फ्रेमवर्क है। जैसे टेलविन सीएसएस वर्क करता है वैसे ही बूट स्ट्रैप वर्क करता है, दोनों का यूजेस आप कर सकते हो। या तो टेलविन सीएसएस का कर लो या तो बूट स्ट्रैप का कर लो, वो डिपेंड करता है आप पर, राइट? यस सर। हम्म। तो ये सब है, यस सर। यही सब है। आप देखो यहाँ पे जितने रोड मैप में देखो, हेलो जितना मैंने रोड मैप समझाया, ये सारे हेलो रोड सर। मैप मैं ऑलरेडी समझा हेलो सर। चुका हूँ। सर। ये रोड मैप हेलो जितना भी आप देख रहे हो, हाँ हाँ बताओ। सर, मैं टेलविन यूज किया था तो टेलविन में तो सर पूरा कोड अपने से लिखा रहता है, उसमें खाली सर्च करना पड़ता है कि इस चीज के लिए यूज करें, इस चीज के लिए यूज करें। नहीं, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, टेलविन में लिखा रहता है कोड। देख लीजिए सर, हम यूज किए होंगे ना एक साल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेलविन सीएसएस में अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, रुक जाओ। जैसे देखो टेलविन सीएसएस को जैसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके बीएस कोड में स्टार्टअप हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे टेलविन सीएसएस का। ठीक है, यहाँ पे आप डॉक्स में जाओगे, इसको यहाँ पे आप
यहाँ पे सर आप गाइड कर सकते हो जिससे सर इंस्टॉल करना है कर। हाँ सर्च करिएगा उसमें कोड का, तो वो बता देगा कोई सा भी कोड। मतलब मान देखो लीजिए हम कि बता देखो 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 बॉक्स जैसे बनाना है। देखो देखो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉक्स देखो सर बॉक्स देखो बनाना है। यस सर। यस सर। देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीएसएस का बात करूँ तो सीएसएस में अगर टेक्स्ट को वाइट करना हो, ठीक है, यस समझो मेरी बात को। टेक्स्ट को यस वाइट सर, करना हो तो वो आप क्या लिखा रहता है लिखोगे? कोड। कहाँ लिखा रहता है? कोड कोड लिखा रहता है सर, सर्च करिएगा तो कोड लिखा रहता है। कहाँ सर्च करेंगे तो लिखा रहता है? ऊपर में सर्च करना होगा ना सर, कि मान लीजिए बॉक्स बनाना है तो बॉक्स डालिएगा तो दिखा देगा। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बैकग्राउंड सीएसएस में क्या होता था कि बैकग्राउंड कलर अगर येलो करना है तो मुझे फुल वहां पे लिखना पड़ता था बैकग्राउंड कलर येलो, राइट। यस सर, यस सर, लेकिन यस यस सर, अगर यही अगर मैं बोल टेलविन रहा था सर। सीएसएस में अगर टेलविन सीएसएस का आप यूज कर रहे हो तो ओनली फॉर बीजी कलर लिख दोगे रेड तो हो जाएगा। बीजी डैश सी ओ यस सर, एल यस सर, यस सर, इक्वल टू ये येलो, राइट। यही बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर, यही बोल रहा हूँ। हाँ तो यही है, यही है तो वही तो मैं यही हम लोग बताने वाले हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना? सर क्या मेरा शेयर हो रहा है ना? टेलविंड जो है, हाँ। यस सर आपका Yes, स्क्रीन sir. दिख रहा It's है। visible. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। हेलो। बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है। सर मैं ऑडिबल, ये यू आर पूछना ऑडिबल। चाहता था, जैसे अपना सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मुझे हेडर चाहिए, तो हेडर भी क्या सीएसएस दे सकता है मुझे? ये टेलविंड सीएसएस अगर मैं लिखूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल आई दे नीड सकते अ हैं, हेडर बिल्कुल। पिक्चर्स और बिल्कुल देखो, जिस किसी भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको हेडर, फूटर, मेन सेक्शन ये चाहिए कि चाहिए? चाहिए ना। तो आप हेडर, फूटर, मेन सेक्शन क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट करने के बाद आपको स्टाइलिंग चाहिए। उसे स्टाइलिंग करने मैंने अभी बताया कि स्टाइलिंग क्यों करते हैं, कि अच्छे से मेरा वेबसाइट दिखे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको, बेस्ट एग्जांपल समझना। आपका घर मतलब तैयार हो रहा है, ठीक है। तैयार स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले आप क्या करोगे? डिजाइन करोगे। डिजाइन करने के बाद आप क्या करोगे? किसी मिस्त्री को पकड़ोगे, वहां पे अपना स्ट्रक्चर तैयार करोगे। स्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे? हाँ तो ईंट पे ईंट खड़ा करोगे, राइट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ईंट Yes, खड़ा sir. करोगे। यस सर। जैसे स्ट्रक्चर खड़ा, आपका घर का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन सामने वाला पर्सन कोई आएगा तो यही बोलेगा कि भैया तुम्हारे घर में तो ना तो प्लास्टर है, ना तो पेंट है, ना तो कुछ है, राइट। तो तुमने बोला कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप अपने फर्श करवाओगे तो ये सारे ईंट ढक जाएंगे। ढक करने के बाद एक अच्छे से पेंट करवाओगे, अच्छे से कलर करोगे, बैकग्राउंड कलर, कलर आप जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने घर में, सजावट कर लोगे। ये क्या हुआ? सीएसएस हुआ, टेलमिन सीएसएस हुआ। और आपके घर में अगर फैन आप लगा रहे हो, फैन का बटन कैसे ऑन होगा, किस बटन को हम ऑन करेंगे तो टीवी चालू होगा, किस बटन को ऑन करेंगे तो लैपटॉप चालू हो जाएगा। ये सब क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट हुआ। यहाँ पे लॉजिक बिल्ड हो रहा है। तो वही है, अगर आप फूटर मेन सेक्शन, हेडर कहीं भी क्रिएट करते हो तो बेसिकली वहीं से स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर लोगे टेलविन सीएसएस के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखो मैं अभी अपना एक प्रोफाइल, एक होस्टिंग कर रहा हूँ। मैं खुद का एक प्लेटफॉर्म चालू करूंगा। तो वहां पे देखो, यहाँ पे मैंने बहुत सारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम कंपोनेंट में जाओगे। कंपोनेंट में जाने के बाद अच्छा ठीक है, इसको रन करके दिखाता हूँ।
स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर दिख रहा है। यस सर। जैसे देखो, ये ये प्लेटफॉर्म मैं अपना चालू करूंगा कुछ दिन में, इस पे काम चल रहा है मेरा। ये प्लेटफॉर्म चालू करने के बाद खुद ही यहाँ पे जैसे देखो सर साइन अप पे क्लिक करोगे। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करोगे, अगर यूजर न्यू है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए उसको फर्स्ट आपका फिल करना पड़ेगा ये टू जेड डिटेल्स। फिर क्रिएट अकाउंट करोगे, अगर इंस्ट्रक्टर है तो उसको भी अपना क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये क्रिएट करने करने के बाद डायरेक्टली वो लॉगिन कर सकता है। लॉगिन कैसे कर सकता है? उसको एक यूजर ईमेल यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। पासवर्ड करने के बाद आपको साइन अप करना होगा। ठीक है, साइन अप करने के बाद अगर आपका पासवर्ड आप बाई चांस भूल जाते हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। मैं अगर होम सेक्शन की बात करूं तो होम सेक्शन में यहाँ पे बहुत सारे डेमो कर आप कंटिन्यू सेशन पे देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी है यहाँ पे कर सकते हो। आप बुक डेमो कर सकते हो, डेमो एक बुक कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे अबाउट के बात करें यहाँ तो फिर यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप का सेशन सेक्शन ऐड किए हुए हैं। जैसे अगर किसी को इंक्वायरी आता है कि हाँ एक्चुअल में भैया ने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ भैया से कि मुझे ये कोर्स लेना है तो कैसे ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो आप मुझे यहाँ पे अपना नेम सब कुछ यहाँ पे मेंशन करो, डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया सर। हाँ देखो, वो यही बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। तो किसी भी आप नेसेसरी सीखने से पहले, देखो किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल सीखने से पहले अपना स्टार्टअप फॉलो करते हैं कि जब तक आप उसे समझोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सर मैं HTML आपने एक दिन में आप पढ़ा दो तो मैं अच्छे खासे हो जाऊंगा, नहीं। आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग स्किल चालू कर रहे हो, मेरा सजेशन यही है, तो उसको अच्छे से पहले टाइम दो। 3 to 4 डेज, जैसे HTML के अंदर मैंने 3 to 4 डेज टाइम दूंगा तो अच्छे अच्छे से एक मैंने HTML के अंदर जैसे क्लासेस ओवर होने के बाद एक अच्छे से मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। मैं कुछ क्विजेस वहां पे ऐड कर रहा हूँ, आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो। जैसे मैं नेक्स्ट सेक्शन में CSS में गया, सेम प्रोसेस ऐसे। तब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने को मिलेगा। क्योंकि ये देखो, यहाँ पे अभी तो आप कर पा रहे हो ऐसे, लेकिन जैसे क्लाइंट प्रोजेक्ट होती है, क्लाइंट प्रोजेक्ट में आपको ये सब कुछ यूजर इंटरफेस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ओनली फॉर एक एक डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड हो जाएगा वहां पे नेसेसरी, आपसे वो ये कंटेंट लिख दिया जाएगा। आपको सब कुछ अपने से इम्प्लीमेंट करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होती है, क्लाइंट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है ये सर। हाँ छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है कि भैया आप तो ये लिख दिए तो ठीक है, नहीं। वहां पे अबाव 10,000, 30,000, 50,000 से अबाव एक एक प्रोजेक्ट देखोगे तो 10-10 साल से 20-20 साल से अबाव चल रहा है। तो भाई बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। देखो IT सेक्टर में एक ही चीज है भाई, इस बात को मैं मानता हूँ, आप मानो चाहे ना मानो। मेरा मेरा तो यही मानना है कि IT सेक्टर में अगर आपको सरवाइव करना है, आपको IT सेक्टर में रहना है, तो अपने नॉलेज को डेली के डेली एक्सप्लोर करना है, बिल्ड करना है, लर्न करना है। इस बात को मानते हो आप? यस सर यस मानता हूँ। सर, मानता हूँ Yeah, सर। हाँ sir, डेली we agree with that. क्योंकि डेली इसका अप टू बेस्ट डेट एग्जांपल रहना है चाहिए। कि हाँ, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप कितनी सारी कंपनी में अप्लाई करोगे, कोई कंपनी को जावा चाहिए, किसी कंपनी को पाइथन चाहिए, किसी को PHP चाहिए, किसी को Node.js है, किसी को रिएक्ट नेटिव चाहिए, किसी को HTML CSS चाहिए, किसी को शॉपिफाई डेवलपर चाहिए, किसी को डेटा एनालिस्ट आना चाहिए, किसी को AWS का नॉलेज होना चाहिए, किसी को ये नॉलेज होना चाहिए, किसी को टेस्टिंग का नॉलेज। भाई एज ए फ्रेशर, एज ए एक्सपीरियंस पर्सन, किसी को आप बोल दोगे कि भैया आपके पास जावा का स्पेसिफिक नॉलेज है, तो भैया के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं हो सकता।
क्योंकि ये अगर जावा पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करो, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कंपनी इतनी एक्सपेक्ट हो गई है क्योंकि मार्केट में इतनी सिचुएशन खराब है कि इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। इसलिए कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि जो बंदे पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, जो कंपनी अगर 15,000 20,000 रुपया प्रोवाइड करती है, वो कंपनी 6,000 रुपया भी नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बंदे पड़े हुए हैं। आपके पास अगर एच टी एम एल सी एस एस का नॉलेज है, तो किसी के पास सारा नॉलेज है एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट एलविन सी एस एस रिएक्ट जेएस, भैया सर मुझे इतना में ही पैसा दे दीजिए, मैं इतना में ही काम कर लूंगा। राइट? राइट सर। यस समझ में आए? समझ में आ गया सर। हाँ, तो ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप मुझे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पे। सो कैसे लगा आज का सेशन आप लोगों को? यस सर, बेस्ट। और कोई? Yes, sir. Sir, can you share your VS Code theme name? या आई कैन से। कैसा लगा, मतलब आप लोग, आप मेरा स्टडी कराने का जो स्ट्रेटजी है, बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? अभी 2 घंटा क्लासेस होने वाली है। Yes, sir. Everything was sir. you friendly and beautiful. Yes, sir. Teaching style is excellent. देखो, मुझे ये है कि मैं जब भी स्टडी कराता हूँ तो सबसे पहले मैं कम्युनिकेट करता हूँ। जब तक आप कम्युनिकेट किसी चीज से नहीं करोगे, जब तक स्टूडेंट एज ए कैंडिडेट और एज ए ट्रेनर, एज ए कुछ भी चीज आप मान लो, मुझे सर मानो, भैया मानो, कुछ भी मानो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे 100% नहीं सीख पाओगे। मैं कितना भी बोलूं, कितना भी कुछ करूं, नहीं सीख पाओगे। उसका बेस्ट है कि अगर मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आप वहां से रिस्पॉन्स करो, पूछो कि भैया मुझे ये है। जैसे मैंने 2 घंटे का यहाँ पे लेक्चर दिया, अगर आपसे कोई अगर कल के डेट में कोई पूछता है, जैसे एज ए फ्रेशर चाहे कोई भी न्यू कैंडिडेट, कि भैया एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप आप समझा सकते हो मुझे, तो आप इजी तरीके से उसे अच्छे से समझा सकते हो। देखो, एक बात करने की, एक बोलने की, एक कम्युनिकेट करने की, एक कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी मायने रखती है। ठीक है? कि आपके दिमाग में कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, क्या चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सब स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए। ठीक है? जी बाकी सब सर, ठीक समझ है। में आ रहा है सर। जी सर, तो कल, आज का सेशन अच्छा। हाँ ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को आज एंड करते हैं। हम लोग कल HTML के बारे में स्क्रिप्ट लेवल से पढ़ेंगे। ठीक है? चाहे 10 डेज के ट्रेनिंग चल रहा है, हम HTML CSS टेलविन CSS और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के ट्राई करूंगा। लेकिन स्क्रिप्ट से हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर यहाँ से कुछ सीख पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट होगा कि कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज आप कर पा रहे हो। राइट? राइट सर। सर मेरा एक डाउट था सर। सर बताओ। ये सेशन, जी सर, ये सेशन में हम लोग खाली थ्योरी पढ़ेंगे कि एक्चुअल कोडिंग भी नहीं, कोडिंग भी करेंगे? करेंगे हम लोग, कल से कोडिंग करेंगे। सर बेसिक से करेंगे? हाँ, बेसिक से करेंगे। देखो, मेरा ओके सर। मेरा स्ट्रेटजी यही है कि अगर 10 डेज के पहले आपको भी मालूम है कि एज ए मंथ 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, तो मैं तो कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ 6 मंथ का। 10 डेज के अंदर मैं, अगर मैं HTML ऊपर ऊपर बता दूं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये होता है, बोलने का मैं तो 2 घंटा भी बोल सकता हूँ। लेकिन आप एक देखो, एक आपने, मतलब आप सोचो कि मैंने एक रोड मैप फॉलो करने के लिए मैंने 2 घंटे अच्छे से कंटिन्यू, 2 घंटा कंटिन्यू बोला मैंने। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसा ना कि भैया ने बता दिया चाहे मैंने बता दिया, कल के डेट में यार समझ ही में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है उससे। राइट? राइट सर। हाँ, तो इसलिए मैं, मेरा सर स्ट्रेटजी यही टुमारो रहता है कि सेम टाइम।
हाँ, सेम टाइम, सेम टाइम। सर टुमारो सेम टाइम। या सेम टाइम, टुमारो इज सेम टाइम, 8 to 10 o'clock। यस सर, और एक एक स्पेसिफिक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाना था, सारे वो उसके वाइज, कोर्स वाइज। हाँ, हेलो। वो कल बात करते हैं हम लोग। एक एक काम करो ना अभी, आप लोग ना। हाँ ठीक है, मैं एक ग्रुप में यहाँ पे जस्ट वन मिनट, मैं स्क्रीन शेयर रिकॉर्डिंग